Praise the Lord. प्रभु की स्तुति हो। I greet all of you in the name of Jesus Christ. मैं यीशु मसीह के नाम में आप सभी लोगों को अभिवादन करता I हूँ। welcome every one of you to listen God's unchanging word. परमेश्वर के कभी न बदलने वाले वचन को सुनने के लिए मैं अभी आप सबका स्वागत करता हूँ। I pray to God in the name of Jesus that God may help you to receive His word. और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उसका वचन स्वीकार करने के लिए परमेश्वर इस समय आपकी मदद करते जाएं। Beloved brother and sister, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, 2000 years ago, 2000 साल पहले when the Lord Jesus Christ came into this world, जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए थे, इस भूमि पर आए थे, He started His ministry when He was 30 years old. जब वो 30 साल के थे, उस समय उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की थी। About more than 3.5 years, लगभग 3.5 साल से भी ज्यादा समय तक He is moving around the whole earth. वो इस पूरी पृथ्वी पर चल फिर रहे थे And He was displaying God's love and grace and mercy. और वो परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह और दया को प्रकट कर रहे थे। He went on doing good, वो भलाई करते फिरे healing all people are oppressed by the devil. और जो लोग शैतान के सताए थे उन सभी लोगों को उसने छुटकारा दिया Finally, और अंत में He handed over Himself for the sacrifice यीशु ने अपने आप को बलिदान के लिए सौंप दिया था according to the will of God. परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। The Bible says, Isaiah 53:10, यशायाह 53:10 में बाइबल ये कहती है, It was pleased for God to bruise Him. Yet it pleased the Lord to bruise him. Yet it pleased the Lord to bruise the Lord Jesus Christ. He has put him to grief. He has put Him to grief. When you make his soul an offering for sin, You see, He has made His soul, Jesus' soul, as an offering for the sin. he shall see his seed, He shall see His seed, he shall prolong his days, days and the pleasure of the Lord will prosper in his in hand. His hands. See that ये word. वचन कहता है, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले, उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे, तब वो अपना वंश देखने पाएगा। वो बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी की जाएगी। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। It was pleased God to bruise Jesus Christ and give Him an offering for our soul. परमेश्वर को ये भाया कि वो यीशु मसीह को कुचल दे और हमारे प्राण या हमारी आत्मा के बदले उसे बलिदान करके चढ़ाए। यही बात परमेश्वर को भाई। That is what Jesus did on the cross. और यीशु मसीह ने क्रूस पर बस यही तो किया था। According to the will of God, पिता परमेश्वर की इच्छा के अनुसार He has offered a sacrifice so that we may able to be saved. Our soul shall be saved. उसने बलिदान चढ़ाया ताकि हम लोग उद्धार पा सके, हमारी आत्मा का उद्धार हो सके। My beloved, मेरे प्यारे लोगों, if you read all the Gospels of Matthew, Mark, Luke and John, अगर आप मत्ती, मरकुस, लूक और यूहन्ना का सुसमाचार पढ़ते हैं, all things very clearly explained. यहाँ सब कुछ बहुत स्पष्ट रूप में बताया गया है। All the things that Jesus did when He was here on the earth. यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे तो यीशु ने क्या क्या किया ये भी बताया है। Why He has done all these things? उसने ये सब कुछ क्यों किया था? The Bible says, बाइबल कहती है, if you read John chapter 20, अगर आप यूहन्ना अध्याय 20 पढ़ते हैं and you read in the last two words, और अंतिम 2 वचन में अगर आप पढ़े, एंड ट्रूली जीसस डिड मेनी अदर साइन इन द प्रेजेंस ऑफ हिज डिसाइपल्स, truly Jesus did many other signs in the presence of His disciples, which are not written in this book, which are not written in the book. but these are written that you may believe that Jesus is the Christ, You see, these are all things which is written that you may believe that Jesus is the Christ, the Son of God, the Son of God, and that believing you may have life in his name. believing that you may have life in His name. वचन कहता है, यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ।
पर विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। See what is written? देखिए क्या लिखा है। Jesus has done so many miracles. यीशु ने तो सच में इतने सारे चमत्कार किए थे It's not written in the book. जो कि इस किताब में लिखे नहीं गए हैं। Few of them are written in the book. उनमें से केवल कुछ ही इस किताब में लिखे गए हैं, You may believe ताकि आप विश्वास करें Jesus Christ कि यीशु मसीह ही is the Son of God. परमेश्वर का पुत्र है। Believing Him, उस पर विश्वास करके you may have life. आप जीवन प्राप्त करें। Same thing in John 21, यूहन्ना अध्याय 21 में भी यही बात बताई गई है। verse 30 says, वचन 30 ये कहता है, last word, वचन 25, एंड देयर आर आल्सो मेनी अदर थिंग्स दैट जीसस डिड also many other things Jesus did. which if they were written one by one, If they are written one by one, I suppose that even the world itself could not contain the books that would be written. what, hallelujah, what is written, brother? What is और भी बहुत से काम हैं जो यीशु ने किए। यदि वे एक एक करके लिखे जाते तो मैं समझता हूँ कि पुस्तकें जो लिखी जाती वे संसार में भी न समाती। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। Oh, what a great thing. कितनी महान बात Within है। 3.5 years of period, बस 3.5 साल के समय में all the things that Jesus did, यीशु ने जो कुछ भी किया, if they write one by one, अगर उन सब को एक एक करके लिखते the books that is written will not able to contain the whole world. तो जो किताबें लिखी जाती वो इस पूरे संसार में भी नहीं समाती थी। Then I thought of it. तो मैंने ये सोचा, How is it, Lord? ये क्या है प्रभु। Then my mind went down this way. तो मैं इस तरह से सोचने When लगा। Jesus was preaching, यीशु प्रचार कर रहे थे। one of the meetings when he was preaching, एक सभा में जब यीशु प्रचार कर रहे थे, he fed with the 5 loaves of bread and 2 fishes to more than 20,000 people. उसने 5 रोटियां और 2 मछलियों से 20,000 से भी ज्यादा लोगों को भोजन दिया था। 20,000 से भी ज्यादा लोगों को। Why I said 20,000? मैंने क्यों 20,000 कहा? Bible it says बाइबल कहती only है 5,000 men कि वहां पर 5,000 पुरुष थे, ate it. यानी 5,000 पुरुषों ने भोजन किया। If 5,000 men are eaten, अगर 5,000 पुरुषों ने भोजन what किया happened to the women? तो फिर स्त्रियों की गिनती What क्या थी? happened to the children? बच्चों की गिनती क्या If थी? you added that, अगर आप इन्हें जोड़ते हैं it may be more than 20,000 people. तो 20,000 से भी ज्यादा लोग थे। That means all the 20,000 people are attending his meeting. मतलब वो 20,000 लोग उसकी सभा में उपस्थित थे। Every person was having a miracle. हर एक व्यक्ति ने इस चमत्कार का अनुभव किया Everyone started writing their own testimony. और सभी लोग अपनी अपनी गवाही लिखने लग गए। वो अपना अपना अनुभव लिखने लग गए। 20,000 testimonies. यानी 20,000 गवाहियां थी। That's for one meeting. ये तो केवल एक सभा थी। Like that, so many. इस तरह से बहुत सी सभाएं हुई थी। Wherever Jesus went, यीशु जहां भी गए, the multitudes of people come. बड़ी भीड़ उसके पीछे आती थी। In one particular place, he entered into a village. एक समय की बात है कि यीशु एक गांव में गए थे। Matthew chapter 14, 35, 36. मत्ती 14 वचन 35 और 36 में हम यहाँ पर इसके बारे में पढ़ सकते हैं। Here it says, यहाँ पर ये क्या we'll कहता hear है? the word. आइए इस वचन को सुनते हैं। And when the men at that place recognized him, They recognized Jesus Christ. they sent out into all the surrounding region, They sent out into all the surrounding region, brought to him all who were sick, brought to him all those who are sick, and begged him begged him. that they might only touch the hem of his garment. They requested Jesus just to touch the garment. And as many as touched it As many as touched, were made perfectly well. they were all made perfectly well. यहाँ पर वचन कहता है वहाँ के लोगों ने उसे पहचान लिया और आसपास के सारे देश में समाचार भेजा और सब बीमारों को उसके पास लाए और उससे विनती करने लगे कि वो उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छूने दे, और जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हुए।
जितनों ने उसे छुआ वे चंगे हुए। If everyone started writing their testimonies, अगर हर कोई उसकी गवाही लिखना शुरू कर देता how many books it will be? तो ये कितनी किताबें होती, It cannot be describable. हम इसे बयान नहीं कर But सकते few हैं। things are written there केवल कुछ ही चीजें यहाँ पर लिखी गई so हैं that you may believe Jesus. ताकि आप यीशु पर विश्वास कर सकें। By believing Jesus Christ, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा you will have life. आप जीवन पाएंगे, You will have life eternal अनंत जीवन and पाएंगे you live forever. और सदा के लिए जीवित What a रहेंगे। glorious, my ये beloved. कितना महिमामय है मेरे प्रिय लोगों, Beloved brother, मेरे प्यारे भाई। when the Lord Jesus Christ, जब प्रभु यीशु मसीह ने He finished His work, अपना काम पूरा कर दिया, the time has come. उसने अपना काम पूरा किया और फिर समय आ चुका था He has to go home. कि उसे घर जाना था। Before going to heaven, स्वर्ग में जाने के पहले, after completing all the works, सारे काम पूरे करने के बाद में, before going, जाने के पहले He made a statement उसने ये वाक्य कहा in John chapter 14 verse 18. यूहन्ना अध्याय 14 वचन 18 में, I will not leave you orphans, I will come to you। Beloved, this is what the Lord said. यीशु ने कहा, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। He said, my time has come to go home. उसने कहा, घर जाने का मेरा समय आ चुका है, I have finished all the work. मैंने सारे काम पूरे कर दिए हैं। But one thing, लेकिन एक बात है, but I will not leave you here on this earth orphan and then I go. मैं इस पृथ्वी पर तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हाँ, मुझे जाना तो है, But I will come to you. लेकिन मैं तुम्हारे पास आता हूँ। What a great word, brother. ये कितना महान वचन है भाई। What Jesus has done. यीशु ने जो किया है, God has given a testimony. परमेश्वर ने उसकी गवाही दी है। What Jesus did. You read 1 John chapter 5:11. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 11 में पढ़ते हैं, And this is the testimony that God has given us eternal life, and this life is in His Son। देखिए ये वचन क्या कहता है, Verse 12. He who has the Son has life, he who does not have the Son of God does not have life। देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, और वो गवाही ये है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और ये जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। Here it says like this. यहाँ पर ये इस तरह से कहता है, God has given to us eternal life. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। It is not written God will give you eternal life. ये यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि परमेश्वर आपको अनंत जीवन देंगे। He said God has given to us eternal life. ये कहता है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। God gave us eternal life. परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दे दिया है। That is a testimony of God. यही परमेश्वर की गवाही है। That eternal life ये अनंत जीवन is there in His Son Jesus Christ. ये तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। That eternal life is in His Son Jesus Christ. ये अनंत जीवन तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। यीशु मसीह में है। He who has the Son of God, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र है, he has life. उसमें जीवन है। If the people don't have Jesus Christ, अगर लोगों के पास प्रभु यीशु मसीह नहीं है then he has no life. तो उसमें जीवन नहीं है। Attend to you, my beloved. इसे ध्यान से सुनिए प्रिय लोगों, That God gave us eternal life. कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है। That life is in His Son Jesus Christ. और ये जीवन तो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में है। If you have Jesus Christ, अगर आपके पास यीशु मसीह है, if you have Jesus, अगर आपके पास यीशु है, you have life. तो आपके पास जीवन है। If you don't have Jesus, अगर आपके पास यीशु नहीं है, then you have no life. तो आप में जीवन नहीं है। How important? ये कितना महत्वपूर्ण Now है। a question comes. अब सवाल उठता है, Do I have Jesus Christ? क्या मेरे पास प्रभु यीशु मसीह है? Do I have क्या मेरे पास यीशु है? Jesus? यीशु मसीह है, Then you have life. तो आपके पास में जीवन है। Then you have eternal life.
तब आपके पास अनंत जीवन If है। you don't have Jesus, अगर आपके पास यीशु नहीं you है have no life. तो आप में जीवन नहीं है। That means इसका मतलब what you have to do then? तो फिर आपको क्या करना चाहिए? You have to receive Jesus Christ. आपको यीशु मसीह को स्वीकार करना If चाहिए। you receive Jesus, अगर आप यीशु मसीह को स्वीकार you करेंगे, have Jesus, आपके पास यीशु you have होंगे, life eternal. तो आपके पास अनंत जीवन होगा। If you don't have Jesus, अगर आपके पास यीशु नहीं है then you have no life. तो आप में जीवन नहीं है, Because क्योंकि Jesus Christ यीशु मसीह is eternal life. वही अनंत जीवन है। Please understand it. इस बात को समझ लीजिए। Life, eternal life is a person. अनंत जीवन तो एक व्यक्ति है। That person is Jesus Christ. वो व्यक्ति तो प्रभु यीशु मसीह है। According to this word. इस वचन के अनुसार, That's why God so loved the world और इसीलिए परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा and He gave His Son Jesus Christ. और उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। He gave Jesus Christ. उसने यीशु मसीह को दे दिया। He gave. उसने दे दिया। When you receive Jesus, जब आप यीशु को स्वीकार करते हैं you have Jesus, तो आपके पास यीशु है you have life eternal. और आपके पास अनंत जीवन है। Beloved, प्रिय लोगों, very important. बहुत ही महत्वपूर्ण है। So many people say, बहुत से लोग कहते हैं I believe Jesus. मैं यीशु पर विश्वास करता But हूँ। here the question is, अब सवाल तो ये you है, believe, okay. आप विश्वास करते हैं, ठीक है, Do you have Jesus? क्या आपके पास यीशु है? You see the change. यहाँ पर बदलाव You देखिए। believe Jesus. आप यीशु पर विश्वास करते Question, हैं, do I have the Jesus with me? लेकिन क्या यीशु मसीह मेरे साथ में हैं? If you have Jesus, अगर आपके पास यीशु then you है have life eternal. तो आपके पास अनंत जीवन है। If you don't have Jesus, अगर आपके पास यीशु नहीं है you have no life. तो आप में अनंत जीवन नहीं है। Beloved, प्रिय लोगों, very important to attend to God's word. परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनना बहुत ही महत्वपूर्ण है। These are all things we have to understand it, acknowledge it, believe it, accept it. इन सभी बातों को हमें समझना होगा, पहचानना होगा, इस पर विश्वास करके इसे स्वीकार करना होगा। हमें इसके अर्थ को अच्छी तरह से समझना होगा। Everyone should know. सभी को जानना होगा। Our conscience know about it. हमारा विवेक इसके बारे में जानता And our है। conscience says, हमारा विवेक कहता I है have eternal life. मेरे पास अनंत जीवन I है, have Jesus Christ. मेरे पास यीशु मसीह है। You will hear this word, 1 John chapter 5 verse 13. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 13 यहाँ पर पढ़ते हैं। These things I have written to you who believe in the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life, that you may continue to believe in the name of the Son of God. Here it is written like this. देखिए यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमें बताता है, I have मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। इस तरह ये कहता है, I have written this to you, those who believe the name of Jesus Christ, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसीलिए लिखा है, यानी यीशु के नाम पर विश्वास that करते you हो may know. कि तुम ये जान लो, You may know. ताकि तुम जान लो You have eternal life. कि अनंत जीवन तुम्हारे पास है, अनंत जीवन तुम्हारा है। You may know. ताकि तुम जान लो, That means now. इसका मतलब Do अभी। you know that you have eternal life? क्या आप जानते हैं कि आपके पास अनंत जीवन Do है? you know? क्या आपको पता है? Beloved, प्रिय लोगों, this eternal life is Jesus Christ Himself. ये अनंत जीवन तो स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं। 1 John chapter 5 verse 20. पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 20। 1 John chapter 5:20 says, पहला यूहन्ना अध्याय 5 वचन 20 कहता है, एंड वी नो दैट द सन ऑफ गॉड हैज कम एंड हैज गिवन अस एन अंडरस्टैंडिंग दैट वी मे नो हिम हु इज ट्रू एंड वी आर इन हिम who is true in his son Jesus Christ. This is the true God and eternal life. This is the true God and eternal life. यहाँ पर वचन कहता है, हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। Who is the eternal life? अब ये अनंत जीवन कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह है।
When you have Jesus Christ, जब आपके पास यीशु मसीह है then you have life. तो आपके पास जीवन है, You have eternal life. आपके पास अनंत जीवन है। Very important. बहुत ही महत्वपूर्ण बात Very है, important. बहुत ही महत्वपूर्ण Do बात you है। have Jesus? क्या आपके पास यीशु मसीह है? You may know. ताकि आप ये When you जानें, believe Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, all those who are believing Jesus वो Christ, सब जो यीशु पर विश्वास करते हैं, I am writing to you. मैं तुम्हें लिखता हूँ, You may know तुम जानो you have eternal life. कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है। इस तरह से कहता है, If you know that you have eternal life, ये जाने कि तुम्हारे पास अनंत जीवन है, who can kill you? तो फिर तुम्हें कौन मार सकता है? Who will come and say, I will kill you? कौन आकर ये कह सकता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा? What power is there in the world to kill you? संसार में कौन सी सामर्थ्य है कि आपको मार दे? No one can kill you. कोई भी आपको नहीं मार सकता। You have eternal life. आप में अनंत जीवन है। When you believe Jesus, जब आप यीशु पर you विश्वास करते हैं, have eternal life. आपके पास अनंत जीवन है। What is the eternal life? A person. ये अनंत जीवन क्या है? एक व्यक्ति है, Jesus Christ. यीशु मसीह है। Jesus said, यीशु ने कहा John 14:18, यूहन्ना 14:18 में, I will not leave you orphan. मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, I will come to you. मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Then when Jesus comes, और जब यीशु आते he हैं, said, I will come to उसने you. कहा मैं तुम्हारे पास आता हूँ। Who come? कौन आएगा? Jesus. यीशु। When he comes to you, जब वो आपके पास आते हैं, who is Jesus? यीशु कौन है? Is eternal life. वो अनंत जीवन है। Eternal life. अनंत जीवन। You have eternal life. क्या आपके पास अनंत जीवन है? Beloved, प्रिय लोगों, this Jesus Christ ये यीशु मसीह is with us ये हमारे साथ हैं। 24 hours of the day. दिन के 24 घंटे हमारे साथ हैं। What Jesus said. यीशु ने क्या कहा? Matthew chapter 28:20. मत्ती अध्याय 28 वचन 20 में यीशु ने क्या कहा है? He says, उसने कहा, the second part of the 20th verse, लो आई एम विथ यू ऑलवेज इवन टू द एंड ऑफ द एज। यहाँ पर देखिए कहता है, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। इस तरह से यीशु ने कहा। now the word, listen carefully. इसे गौर से सुनिए। Jesus said, यीशु ने कहा, lo, देखो I am with you मैं तुम्हारे संग हूँ always, हमेशा, even to the end of the world. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ। See what Jesus said. देखिए यीशु ने क्या कहा? I am with you. मैं तुम्हारे संग It is हूँ। not written, I will be with ये you. नहीं लिखा है कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा। He said, I am with you. उसने कहा मैं तुम्हारे संग I am हूँ, with you. मैं तुम्हारे Even संग to हूँ, the end of the world. जगत के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूँ, With you. तुम्हारे संग हूँ। Who is with you now? अभी आपके साथ कौन है? Jesus Christ. यीशु मसीह है। Who is Jesus Christ? यीशु मसीह कौन है? He is the everlasting life. वो कभी न खत्म होने वाला जीवन He है, is eternal वो life. अनंत जीवन है। That means you have the eternal life always. देखिए इसका अर्थ ये होता है कि आपके पास में अनंत जीवन है, हमेशा का जीवन है। Now we may ask a question. शायद आप ये सवाल पूछे, Jesus finished the work here, यीशु ने यहाँ पर काम पूरा किया ascended to heaven, और स्वर्ग में उठाए गए sat down in the heavenly place. और स्वर्गीय स्थानों में बैठाए गए। This word says, ये वचन कहता I है, am with you always. मैं हमेशा तुम्हारे संग हूँ। इस तरह कहता I है। will say he sat down in heavenly place in the right hand of God. वो तो स्वर्ग में पिता परमेश्वर के दाहिनी ओर जाकर बैठ गए हैं, He is seated there, वो वहाँ पर बैठे हैं। but the Bible says I am with you always here. लेकिन बाइबल कहती है कि मैं यहाँ हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। How he said? ये कैसे कहा? This beauty यही तो सुंदरता है, is with us वो हमारे साथ है in a spirit form. आत्मा के स्वरूप में, The Holy Spirit, पवित्र आत्मा के रूप Spirit में, of truth. जो सत्य है। I will explain this to you. मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। Only thing you know this. आपको केवल इसे जानना You है। are not orphan. आप अनाथ नहीं हैं, You are not alone. आप अकेले नहीं हैं। The eternal life, अनंत the जीवन, Lord Jesus Christ, प्रभु यीशु मसीह, the one who died for you on the cross, जो क्रूस पर आपके लिए मर गए, one who shed his blood, जिसने अपना लहू one बहाया, who purchased you, उसने आपको खरीदा, one who rose from the dead. जो मुर्दों में से जी उठे हैं। This Jesus ये Christ यीशु मसीह, is with us. वो हमारे He's साथ है, with you. वो आपके साथ हैं, He's with me. वो मेरे साथ है, Always. हमेशा हमेशा के लिए। Know it. इसे जान लीजिए। No one on this earth can
touch you इस पृथ्वी पर कोई भी आपको छू नहीं सकता है unless you give a place for them. जब तक कि आप उसे जगह न दे। If you give a place, they will touch you, kill you, whatever you want to अगर do. आप जगह दे तो वो आपको छू लेंगे और मार देंगे, जो चाहे वो करेंगे। Legally, नैतिक रूप में no enemy has right to touch you or torment you or oppress you or afflict you. किसी भी शत्रु के पास में अधिकार नहीं है कि वो आपको छुए या आपको सताए या फिर किसी तरह से आपको वो परेशान करें, Because you have eternal life. क्योंकि आपके पास अनंत जीवन है। You have Jesus Christ. आपके पास यीशु मसीह है। The greater person is there with you. वो महान व्यक्ति तो आपके पास है। Know it, my beloved. इसे जानिए प्रिय लोगों, How much thanks you ought to give to Him. आपको उससे कितना धन्यवाद देना चाहिए, How much you ought to love Him. आपको उससे कितना प्रेम करना How चाहिए, much you ought to give our heart to Jesus. आपको अपना हृदय यीशु को देना चाहिए। We will never die. आप कभी नहीं मरेंगे, We will never die. आप कभी नहीं मरेंगे Live forever and ever and ever. और आप तो सदा सदा के लिए जीवित रहेंगे। That is the will of God. यही परमेश्वर की इच्छा है All men to be कि saved. सब मनुष्य उद्धार पाए All should have life और eternal. सबके पास अनंत जीवन हो। You have it already. आपके पास ये पहले से ही है, Know it. इसे जानिए Just thank God. और प्रभु को धन्यवाद कीजिए। Shall we pray? आइए प्रार्थना करते हैं। Father, पिता, I want to thank you and praise you for these dear children. इन प्यारे लोगों के लिए मैं आपकी स्तुति करता हूँ, धन्यवाद देता I हूँ। thank you, Father, मैं धन्यवाद देता हूँ पिता, for opening their eyes इनकी आंखों को खोलने के लिए that they may be able to see you. कि ये आपको देखने पाए। You are opening their understanding आप इनकी समझ को खोल रहे हैं so that they may be able to understand you. ताकि ये आपको समझने पाए। Thank you, Father, धन्यवाद पिता, for opening their mind इनके मनों को खोलने के so लिए, that they may be able to see clearly. ताकि ये स्पष्ट रूप में देखने पाए। Thank you for opening their hearts इनके हृदयों को खोलने के लिए so धन्यवाद, that they may be able to receive you in their hearts. ताकि ये आपको अपने हृदय में स्वीकार कर सकें। Thank you for your Spirit, आपकी आत्मा के लिए धन्यवाद, the Holy Spirit, पवित्र आत्मा के लिए, always with them, जो हमेशा इनके साथ में रहता है। always there with them. हमेशा ये इनके साथ में रहता Father, है। I give you glory. पिता, मैं आपको महिमा देता हूँ। Enemy has no authority or power to touch these dear children. शत्रु के पास कोई सामर्थ्य नहीं, अधिकार नहीं कि तेरी इन संतानों को छुएं। They are totally different. ये तो पूरी तरह से अलग हैं And you already purchased और them आपने इन्हें खरीदा है, by your own blood. अपने ही लहू से Thank you, खरीदा है। Father. धन्यवाद पिता, They are all your precious one. ये तो आपके बहुमूल्य लोग हैं। Thank you for keeping them under your wings. इन्हें अपने पंखों तले रखा है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। Till you come and take them. आपके वापस आकर इन्हें ले जाने तक, Till you receive them. इन्हें स्वीकार करने तक प्रभु, They are under your protection. ये आपकी सुरक्षा में हैं। We give you glory, Father. हम आपको महिमा देते हैं पिता। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। God bless you, my beloved. मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको आशीष दे।